उल्टा रखना सीधा। Retreat. The rector explained the meaning of the word retreat. इससे पहले वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता रहा है स्टीफन, लेकिन वहां पर उससे अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर उसने फील किया है, बर्डन फील किया है सिन का। नौ जब रिएक्टर है उसने आकर वहां पर फ्रांसिस एग्जिबर ने आकर वहां पर जो स्पीच की है, ओरेशन की डिबेट दी है उसने, तो वहां से उसका माइंड जो है वो रिलीजन की तरफ वापस आया है। तो रिट्रीट की मीनिंग बताए हैं रिएक्टर ने। इट इज द मोस्ट solitary practice for all who desire to have lead before God and in the eyes of men a truly Christian life। जो truly Christian life गुजारना चाहते हैं, जो God को फॉलो करना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ी मीनिंगफुल प्रैक्टिस है। It signifies a withdrawal for some time from the cares of our life, the cares of workaday would, in order to examine the state of our conscience, to reflect on the mysteries of holy religion, and to अब इसके अंदर सारी चीजें हॉली रिलीजन की मिस्ट्रीज वाज़ेह होती हैं। इसके अंदर इंसान दूसरों के लिए काम करता है, इसके लिए इंसान अपने कॉन्शियंस को देखता है, कॉन्शियंस को रिलीजन की तरफ वापस आता है। टू अंडरस्टैंड, to reflect on the mysteries of holy religion and to understand better why we are here in this world। ये रिट्रीट में सब चीजें आती हैं, बहाली, वापसी, रिबॉर्न होना, रिलीजन को और तमाम चीजों को अंडरस्टैंड करना। He informed them that during those few days he would speak to them, especially on the last 4 subjects that he had outlined. They would find the subjects to be there in their books of catechism, namely death, judgment, hell and heaven। अब देखिए ये तमाम सब्जेक्ट है जो कि रिएक्टर उसको बार बार इंट्रोड्यूस करा रहा है। ये 4 सब्जेक्ट हैं, डेथ, जजमेंट, हेल एंड हेवन। इनके ऊपर शायद रिलीजन की मिस्ट्रीज मौजूद है या लाइफ के मकासद मौजूद है। He wanted them to understand these concepts fully so that they may derive the fullest benefit from the retreat। He reminded them that they had been sent to the war for one thing and one thing alone, and that was to do God's holy will and to save their immortal souls। He wants to say that retreats also include incredible this thing that we have to get consent with God, holy God, and we have to follow the all morals of God, and we have to save, in this way we can save our holy souls। खुदा की पैरवी करके हम अपनी रूहों को बख्शवा सकते हैं, बचा सकते हैं। It profits a man nothing if he gains the whole world but loses his immortal soul। वही वो मॉरलो वाली थ्योरी कि सब कुछ मिल जाए लेकिन इमॉर्टल सोल खो जाए तो फिर इंसान घाटे में है। The salvation of the soul is the only worthy thing in the world। दुनिया में इंसान का मकसद अपनी soul की salvation, निजात हासिल करना है। There is nothing in the world which can make up for the loss of one soul। He wanted them to put away all worldly thoughts out of their mind during the days of the retreat, including thoughts of study, and to give all their attention to the state of their souls। अब लेक्चर का ये लेक्चर जो दे रहा था उसका मकसद ये था कि तमाम लोगों को, जितने भी लोग हैं उनको उनकी स्टडीज, उनकी तमाम तरह एक्टिविटीज से उचक ले, अलग कर दे और वो सारी कंसंट्रेशन किस चीज पर हो जाए। लाइट जलो मेरा बेटा और भी जला दो, और किस चीज पर कंसंट्रेशन हो जाए, साल्वेशन पर। और soul पर concentration हो जाए। He reminded them that during the days of the retreat, they were all expected to preserve a quiet and pious
demure and to shun all unseemly pleasure. The elder boys were asked to see that these customs were not violated. He called upon the offers of the two sodalities, sodalities to set a good example. These words mortified Stephen, for he was an office bearer of one of these societies, the sodality of our blessed lady. ये उसको स्टीफन जो है वो उस वक्त उसकी ज़ात बड़ी मोटिफाइड हो गई। ये अल्फाज जो है ना उसको बहुत ही अच्छे लगे हैं या इस पर मर मिटा है जब उसको कहा गया फॉर ही वॉज एन ऑफिस बेरर ऑफ वन ऑफ दीज सोसाइटीज कि वो उन सोसाइटीज में से एक बशिंदा होगा द सोडेलिटी ऑफ आवर बेस्ट लेडी, जिसका नाम सोडेलिटी ऑफ आवर बेस्ट लेडी मीन की दैट इज अ, ये कोई उन्होंने ओहदे बनाए हुए हैं कि आज हेवन के अंदर इस तरह की ओहदे होंगे, लोग होंगे, सोसाइटीज होंगे, तो उनमें से स्टीफन भी एक होगा। ये वर्ड उसे बहुत अच्छे लगे हैं। They must all observe the retreat with their full heart and soul. God will then bestow His blessings on their studies during the whole year. अगर उन्होंने अपने soul पर concentration कर ली, soul की निजात हासिल कर ली, अपने soul के लिए उन्होंने कोई अच्छे काम कर लिए, retreat को परफॉर्म किया पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर, तो क्या होगा? तमाम साल blessing रहेगी. This Rukhyan would become the foundation of the pious Christian life, which they would later remember with pride and joy. He especially prays that if there was any among the students who had lost God's grace by committing a grave sin, this moment may prove to be a turning point in his life. ये चीज थी स्ट्राइकिंग किसके लिए? स्टीफन के लिए। क्या कहा उसने? उसे अगर तुम में से कोई ऐसा शख्स मौजूद है स्टूडेंट जी, जो कौन है स्टूडेंट जिसने ऐसा गुनाह किया है जिससे उसका गॉड उससे खो गया है, तो वो आ जाए सामने। Stephen could not forget how close an application these words had to his own life. Stephen ये आज तक नहीं भूल सका कि उसकी इस बात का उसकी अपनी सोल के ऊपर कितना असर हुआ था। Death and judgment. अब डेथ की और जजमेंट डे की हवाले से क्या सोचता है स्टीफन? The director spoke on death and judgment on the next day. Stephen's soul was stirred out of the listless despair into which it had sunk. पहले ही बड़ी मायूसियों के अंदर था। कौन है बाहर? Who is this? His vague fear became enlarged into a great terror. उसका अजीबोगरीब किस्म का वेग जो फेयर था वो इनलॉज हो गया, ग्रेट टेरर में बदल गया। एज ही हेard the hoarse voice of the rector, he felt touched by the chill of death, the film of death veiling his eyes and the vital pulse losing their vitality, like lamps which are extinguished one by one. कितनी खूबसूरत बात की है। खौफ बढ़ता गया उसका, और उसके बाद डेथ जो है वो अपने आप को अनवेल कर रही है। डेथ की आंखें वाजे हो रही हैं, वो डिस्पेयर और डिम हो गया है, और उसके अंदर विटेलिटी के जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे बुझते गए हैं एक एक करके। जब इंसान बेशक यंग मैन 12, 13, 14, 15 ईयर्स का हो, जब उसको एक्सट्रीम टेरर में आप देते हैं किसी भी हवाले से, तो उसके अंदर जो एक्साइटमेंट एक लम्हे के लिए तो सारी बुझती चली जाती है और वो इंतहाई डिस्पेयर होकर बैठ जाता है। Why this happen in all religions? तमाम रिलीजन्स में ये नुक्ता सेम है। Maybe this is to balance the excitement. अदरवाइज वो लड़के जो 11, 12, 15 साल के वो तो इतने ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे, शरारतें बहुत ज़्यादा करेंगे। उनको बैलेंस करने के लिए उनकी एक्साइटमेंट को मे बी ये फैक्टर लाया गया है। Every action of the dying, struggling man described by the reactor, और फिर हर चीज़ बताई है रिएक्टर ने कि जब वो इंसान वहाँ पर मर रहा होगा, जब दुनिया में मर रहा होगा तो कैसा होगा।
फिर जब वो स्ट्रगल कर रहा होगा लाइफ के लिए तो ऐसा होगा, या डे ऑफ जजमेंट को जब उसे आग में डाला जाएगा या इंतहाई उसको अजियत में रखा जाएगा तो वो स्ट्रगल कैसे करेगा। डिस्क्राइब बाय द डायरेक्टर सीम टू स्टीफन टू बी हैपनिंग टू हिम, और स्टीफन को ऐसा लगता था जैसे उसके साथ बीत रहा है। 2006 की बात है जब वो मूवी बनी थी। कौन सी मूवी थी? कब्र का अजाब। वो ईरानियों ने मेरे ख्याल में मूवी बनाई थी। हैव यू सीन? नहीं देखी? बड़ी खौफनाक मूवी थी। लोग बड़े डर गए थे, बहुत डर गए थे। और जिस तरह से उन्होंने मूवी बनाई थी वो उससे बाकी बड़ा खौफ पैदा होता है कि वो लाश है, लाश को दफना कैसे रहे हैं, फिर लाश दफनाने के बाद जब लेकर गए हैं तो उसको आग में कैसे डाला जा रहा है, जंजीरों में कैसे लेकर जा रहे हैं। और पोटेंशियल के साथ वो जो आवाज़ थी पीछे, जो अरेबिक लैंग्वेज थी, उसने कमाल इम्पैक्ट डाला था लोगों के ऊपर। लोग एकदम डर गए थे। He felt that he was going to die and then his body would be thrusted into a grave. उसे बिल्कुल यही चीज सोचा देखा, out of the sight of men's eyes, और इंसानों की आंखों के सामने, to be eaten by worms and molded into dust, और देख रहा है कि किस तरह जमीन के अंदर से कीड़े मकोड़े खा रहे हैं और किस तरह वो तब डस्ट में बदलता जा रहा है। Then the reactor spoke about the judgment. While the friends would be still standing by the beside of the dead man, his soul would be judged by God. जब उसकी soul को God जज करेगा तो उसके दोस्त भी उसके साथ ठहरे होंगे। At the last moment of the earthly life, the entire worldly career paused before the vision of the soul. और मुकम्मल जिंदगी जो है उसके सामने, उसकी रूह के सामने से गुजरेगी। वो अपनी जिंदगी की पूरी मूवी देखेगा। But before it had time to reflect on it, the body would have died. लेकिन ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं, सोची जा सकती हैं जब से जिंदगी की डेथ होने से पहले। The soul would then stand terrified, और जिंदगी the soul would then stand terrified, और dear judgment को जिंदगी जो है वो soul जो है terrified ठहरी होगी before the judgment of seat of God, before God who had been too just and merciful to it for such a long time. इतने अरसे तक उसे गुनाह की इजाजत दे रखी, उसको ऊपर मर्सीफुल रहा कि ये इंसान मेरे पास वापस आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया। Now God would show justice only, without any mercy. He had long been patient with the sinning creature, giving him time to repent. Now that time was over. These could be no more time granted for it, had been wasted in enjoyments, in scoffing at God. God के ऊपर वो मजाक करता रहा है, and ignoring the warnings of the Holy Church by violating God's commandments and the deceiving his fellow creature. अब आप देख रहे हैं कि एक वक्त वो था जब वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास गया है तो उसको अपने जिस्म के एक एक जरे के बारे में इल्म था कि उसके अंदर क्या तब्दीली आ रही, रुनमा हो रही है। और when he is listening the reactor speech, again he is feeling all these things. तो एक आर्टिस्ट जो है यंग मैन होने के नाते वो किस किस प्रोसेस से गुजरा है, that was the actual experience which Stephen is going to share with you as a mouthpiece of James Joyce. बच्चों को देख के बताना पड़ता है कि क्या पढ़ रहे हैं। He had committed one sin after another. Now it has God's turn to administer punishment to him, and God was not to be hoodwinked or deceived, और God को धोखा नहीं हो सकता। Every sin would come forth from its place of hiding. जहाँ जहाँ गुनाह छुपा होगा वहाँ से गुनाह बाहर निकल कर आएगा। The tiniest imperfection and the most atrocious enormity alike, हर जगह से imperfection बाहर आ जाएगी। It would then not avail a man one bit that he had been an emperor, a general, an inventor, or the most learned of men in life. चाहे कोई भी शख्स है, everyone will be
in the queue in equal way. Before the judgment of seat of God, all sinners were treated alike. He would reward the good and punish the wicked. One single instant was enough for the trial of man's soul. एक लम्हे में सारी हो जाएगी. One moment after the death of the body, the soul would already have been weighed in the balance and judged. After the judgment, the soul would be sent to heaven, consigned to the prison of purgatory, और उसको ऐसी जहन्नुम ऐसी प्रिजन में रखा जाएगा जहाँ उसकी रूह की सफाई होगी, यानी कि पनिशमेंट दी जाएगी. और होल टू हेल, या अगर बहुत बड़ा वो जहन्नमी है, अकॉर्डिंग टू इट्स मेरिट्स, या उसे जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा. After this particular judgment, there was also to be general judgment, where God justice would be vindicated in the eyes of all. This could take place on Doomsday, which is never very far off. The stars would then fall from the sky like figs from a tree, which has been shaken by the wind. क्या लाइन, इस लाइन का मतलब क्या है? The bride's son would become a sackcloth of hair. बालों की एक बोरी बन जाएगा. The moon would become a blood red. The sky would be like a scroll which has been rolled away. The archangel Michael would, Michael हम कहते हैं ना, would appear against the sky, majestic and terrible. He would have one foot on the sea and the other foot on the ground, and blow 3 times on his trumpet. 3 दफा trumpet बजाएगा, signifying the death of the time itself. The souls would get up and approach him at the low sound of the trumpet. The supreme judge would then come. आपने बात तो की है लेकिन बात सही नहीं की. बड़ी हो गई अब तो. He would be no longer kindly Jesus, but the great God in full power and majesty. अब जीसस की पावर, वो जीसस नहीं होगा अपना जो बहुत ज़्यादा काइंड है. अब गॉड ऑलमाइटी मौजूद है जो जस्टिस करने वाला. His voice would be heard in the first limit of the space, and at the bottom of the sea. There can be no appeal from his sentence. He would call the just to his side. बस वो इंसाफ को अपने साथ रखेगा, bidding them enter into his kingdom, the eternity of bliss which has been prepared for them. He would then cast away the unjust from him into the everlasting fire, which has been prepared for them by the devil and his assistants. The souls of the sinners would be in great agony. Then for friend would be parted from the friend and relation from the relation. ना कोई किसी का दोस्त होगा, ना कोई किसी का रिश्ता पहचानेगा. ठीक है, कैसा लगा? The poor sinner would hold out his arms to those who had been dear to him in the earthly life, to those whose piety he might have mocked, जिसकी अच्छी चीजों के ऊपर मोक्ट किया होगा हमने, to those who tried to lead him to the right path,
but it would be too late then. The just would turn away from the damned souls all whose sins now lay revealed. Death and judgment were both certain and not to be escaped, though no one knows when he might die. Death is the end of all of us since the day when the sin of Adam and Eve, man's first parents, brought death into the world. It is the pious Christian alone who would be able to mock at death at the end. Stephen felt that every word of this discourse was for him alone. स्टीफन ने महसूस किया कि हर पूरी दुनिया ये एवरी वर्ड को ठीक कर लें, ये वर्ड है WRD वर्ड। हर एक लफ्ज जो है वो किसके लिए है? तो ऐसा लगा कि हर एक लफ्ज उसके लिए कहा गया है। चैप्टर नंबर 2 and we are going to study the topic the fowl. समझी भी है? God created Adam and Eve so that they might occupy the places left vacant in the heaven after the explosion of the Lucifer, his rebellious angels. God ने एडम और ईव को क्रिएट किया है ताकि उन प्लेसेस को वो ऑक्यूपाई कर लें इन प्लेसेस पर पहले एंजल्स और लूसीफर रहते थे। लूसीफर वाज वंस अ सन ऑफ द मॉर्निंग। एक बार लूसीफर जो था वो सुबह का किसका बेटा था? हाँ, a radiant and mighty angel who Lucifer. Yet he fell, and along with him fell a third part of the heavenly host of angels. 3 हिस्से एंजल उसके साथ गिर गए। Theologian says that his sin was that of pride. उसका क्या था sin? His arrogant statement that he would no longer serve God. That moment of arrogance was his everlasting ruin. Adam and Eve were created and placed in Eden. The garden was teeming with vegetation, and the fruits, birds, and beasts were the willing servants of Adam and Eve. There was only one condition imposed on them in obedience to the will of the God. They must not eat the fruit of the forbidden tree. They fell because they violated God's order. They were tempted by the devil, who was himself a bright angel once. He came to them in the shape of the serpent, who is the most cunning of animals. He was in voice that mere man should inherit the place which he himself occupied in the heaven one day. He approached Eve first and poured the poison of temptation into her ears. They were promised that if they ate the fruit of the forbidden tree, they would become like gods. They would be like God himself. Eve was tempted and gave the fruit to Adam also, who accepted it because he did not have the moral courage to assist. Thus, Adam and Eve fell, and plan of the devil proved successful. Then the voice of God was heard in the garden, calling the creatures to account for the sin they had committed. Michael appeared before the sinful couple, holding a flaming sword in his hand, and drove them out of Eden into the mortal world, the world of sickness and striving, where they had to bear the rigors of the seasons and earn their bread with the sweat of their brow. वही सारी स्टोरी, वही कहानी, the promise, the punishment of sinners. Okay जी,
Yes, I think so. नहीं यार ये करना, हाँ ये करना पड़ेगा, चैप्टर 4 से पढ़ना होगा। चैप्टर 4 में, हाँ आप चैप्टर 4 पढ़े ना। लाइफ ऑफ पाइटी देखिए जी, ये नेकी की जिंदगी कैसे जीता है। स्टीफन्स लाइफ नाउ बिकम अराउंड ऑफ प्रेयर्स एंड पाइटी। क्लियर जी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाइटी? मिस सना विल टेल मी। हाय सना। तकवा, प्रेज गॉड। He devoted his Sundays to the mystery of the Holy Trinity. उसने अपने संडेज किसको दिए? हॉली ट्राइनिटी को दिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइनिटी? सोफिया विल टेल मी। वही आका, वही मौला, वही है राम कलंदर। तीन, three says God, Son, Father and Holy Ghost. Father कौन है बताइए? फादर गॉड ही है ना। उसकी गॉड के 3 फेसेस हैं, एक सन की शक्ल में, एक क्राइस्ट की शक्ल में, एक फादर की शक्ल में। अच्छा, एक फादर की शक्ल में है, ठीक है, और तीसरा हॉली घोस्ट है। जिस मतलब दोनों फादर और सन के अंदर जो साउल मौजूद है, एक ही है, वो उसे हॉली घोस्ट कहते हैं। मेरी नहीं आती ट्राइनिटी के अंदर। ये ट्राइनिटी की शक्ल है ना, फिर हम कहते हैं कहीं आका, कहीं मौला, कहीं है राम कलंदर। ये हम भी कहते हैं ना ये चीज। मैं आज एक बहुत ही लोकल पंजाबी गीत सुन रहा था, लेकिन वो नया था, लेकिन था लोक गीत। उसमें हैरान हो गया। उसने कहा पता नहीं मेरे दिल में ना अल्लाह है और मेरे दिल में ना राम है, मेरे दिल में तो बस सिर्फ तुम्हारा नाम है या तुम्हारी मोहब्बत है, इस तरह का कह रहा था। मैं हैरान हो रहा था कि अब ये छोटे छोटे लोकल लोग भी इस तरह की बातें करने लगे। खुदा इनको हिदायत दे, कोई अक्ल को हाथ मारे, है ना। सॉन्ग अच्छा, पहले आपको पता है वो हमने पहले सॉन्ग्स के ऊपर पाबंदियां लगती थी और बड़े लोग उसके ऊपर वो कहते थे कि लोग कहते कि ये सॉन्ग सुनना गुनाह है। तो जैसे वो था कि हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने। अभी एक और अभी सॉन्ग है जो रब रूठे तो रब रूठे। ये क्या है? ये भी सॉन्ग है, ये सॉन्ग नहीं आता है क्या? रब रूठे आगे क्या है? सॉन्ग नहीं है, छोड़ दी खुदाई। ये भी सॉन्ग सबसे ज्यादा हिट किया था। ये देखो, अब तो चीजें मालूम भी नहीं होती। वो गुनाह तो वैसे जन्नत से जाई तेरे लिए छोड़ दी खुदाई। He devoted his Sundays to the mystery of the Holy Trinity. Monday, संडे वाले दिन जनाबे वाला ट्राइनिटी के ऊपर गौर करते हैं। मंडे टू द हॉली गोस्ट पर गौर करते हैं। ट्यूसडे टू द गार्डियन एंजल्स, और ट्यूसडे को गार्डियन एंजल्स पर। वेडनेसडे टू सेंट जोसेफ। थर्सडे टू द मोस्ट ब्लेस्ड sacrament of the altar. Friday to the suffering of Jesus, and Saturdays to meditating on the Holy Virgin. अब ये Holy Virgin कौन है?
मेरी बुक दूसरी है। हॉली वर्जिन कौन है? यस। एवरी मॉर्निंग रिन्यूड हिमसेल्फ। जी अच्छा, मैं आता हूँ। ये कल एक दिन में चारों बुक्स की टेक्स्ट दोबारा से कोशिश करो कि हाँ एक ही दो दफा रेप और लोड की भी एक ही दफा बाकी की बड़ी। अच्छा तो वजह से अगर हमने कल क्वेश्चन कर लिए ना वैसे तो टाइम ही मिलना उसके लिए, लेकिन अगर क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए ना टेस्ट के लिए तो उसका हमें नुकसान होगा। फिर हम परसों भी क्वेश्चन रिवाइज करते रहेंगे और जब फिर हमने सेकंड टाइम पेपर देने जाना है तब भी हम दूसरे टाइम क्वेश्चन हम 3 दफा क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, मैंने दिमाग घूम जाएगा। इसलिए कल सिर्फ टेक्स्ट का टेस्ट और परसों जो है ना क्वेश्चन रिवाइज करके और फिर देखना। मैंने ऑनलाइन क्वेश्चन का पेपर नहीं दिया तो मैं बिल्कुल ठीक से सीरियल नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट का टेस्ट दे दें। आना कल हमने देना टेस्ट। हाँ कितने बजे टेक्स्ट का? 5 बजे शाम को। टेक्स्ट का ही अगर टेस्ट देना तो फिर तो 1 घंटे में भी 3 सर को ये कहेंगे ना कि दिन में किस टाइम में या काफी है अपना टेस्ट ही लेना है हमें आता है एक स्टैंडर्ड लेता पता लग गया तो ठीक है। हम यानी कि शाम 15 मिनट में स्टैंडर्ड करना होता है। 15 मिनट में नहीं होता, 40 मिनट का है। तो टेस्ट में ना 5 बजे 6 बजे 1 मिनट आ जाती है। 3 घंटे का पेपर होता है तो 4 क्वेश्चन करते हैं। बुखार से भी अभी भी हो रहा है। कितने बजे? 45 मिनट होता है ना। हाँ अगर 3 तो फिर तो 15 है। अगर पोइट्री की 4 करनी है ठीक है। आपने पोइट्री की 4 से कर रहे थे पहले ये पोइट्री का 3 करने 4 में 3 करने होते हैं कि तुम्हारी होगी 4 करने हैं। उसकी हर लिटरेचर की तो मैंने बिल्कुल नहीं, वो तो मैंने इसका पेपर देने के बाद पहले हमने कितनी तैयारी की ये पोइट्री के बाद अगर ड्रामे का मेरा। हाँ ड्रामे उसके बाद 4 छुट्टियाँ तो उसमें ट्यूसडे को होगा फिर नहीं मेरे साथ नहीं अच्छी तरह पता था पता ही नहीं चल रहा देखो 4 नहीं है वेडनेसडे को आई थी। हाँ वेडनेसडे को ऐसा करते हैं ना हम टेक्स्ट का भी टेस्ट देते हैं साथ वो कोटेशंस को कंप्लीट कर। हाँ ये ठीक है इसका भी देखिए कोटेशंस का करने के लिए वो क्वेश्चंस के अंदर ही है। कोटेशंस नहीं कंप्लीट कोटेशन जो सर लगते हैं कोटेशंस लिखवाइए तो वो सारी क्वेश्चंस के अंदर तो नहीं फिर वो तुम्हें वैसे भी आती है। नहीं क्वेश्चन सारी तो हो जाती है मेरी नहीं हो जाती है सारी वो तकरीबन क्वेश्चन में कोई होता है ना वरना सारी क्वेश्चन में आ जाता है। मेरा तो दिल कर था इस दफा बंदा आराम से कोटेशन पढ़े कंप्लीट याद रहे थे जाके पेपर में कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है। और क्या पढ़ इतना जैसा भी हो कोई पता नहीं क्योंकि अगर वो ये कहे ना कि बच्चों ने पढ़ के पेपर दिया हमने चेक करना तो उसका मतलब था कि हमने पढ़ के पेपर दिया हमने पढ़ा था उसने फिर वही कुछ किया। तो अब तो मेरा दिल ही नहीं पता मेरा दिल करता बंदा कोटेशन याद करे कंप्लीट याद करे और जाके पेपर दे। जब मैंने उसका इतना अच्छा किया था तो मैंने कहा वो भी बेफिक्र है मैंने भी प्रोज में खोल के देखा तो थोड़ा या मैथ्स लिटरेचर का बोल दिया था। अच्छा इसका क्या क्वेश्चन है डिस्कस द मेन फीचर ऑफ वाटर स्टूडेंट क्या है योर आंसर रेफरेंस टू द पॉइंट इन योर कोर्स। ओके अच्छा जो अच्छा मुझे पता है क्या जो इसमें से आई थी ना उसमें से सिस्टम गार्डन में से मुझे मैंने किया वो ठीक था लेकिन अब जब मैंने अब दोबारा कोई की या ना दोबारा तो मुझे उसका कॉन्सेप्ट समझ आया। मुझे
स्टैंडा मैंने गलत होता इसका है। मेरे स्टैंडा में से 2 स्टैंडा ठीक हुए हों। मेरे यार वो मेरा वाला कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट करते ही हैं इस लाइन में कॉन्सेप्ट करते नहीं किसी का है नहीं। हाँ तो वो अब इस लाइन में ये कॉन्सेप्ट था कि मेरी बिलवड है वो किसी और से मोहब्बत करती है तो उसके इस सच की वजह से मुझसे मोहब्बत करता है। मैंने ये 25 नंबर का क्वेश्चन है ना, कितने नंबर का क्वेश्चन है? तुम्हारे 6 नंबर का, 6 नंबर का हुआ एक साथ का बना लो बाकी तो। एक साथ तुम्हारे इसमें भी कितने हुए थे? 3 मेरे 2 ठीक हुए, मेरे कितने थे? 2 ही थे। मुझे 2 नहीं तुम्हारे कितने स्टैंडर्ड है? बस मुझे तुम्हारे नंबर नहीं है इसमें कोई 33 वो कितने मेरे भी इतने ही है गार्डन वाले मेरे 31 क्वेश्चंस में मेरे तो बहुत अच्छे हो रहे हैं बहुत और वैसे मैंने कितने मार्क्स बने क्वेश्चन की नॉर्मल में कितने? मेरे 3 अब मेरे अगर इसमें 40 नंबर भी आते हैं ना तो मेरे 32 पता नहीं तुम्हारे वैसे नॉर्मल में कितने? नॉर्मल में मेरे 49 और उसमें 60 और उसमें ड्रामा मैं तो लिटरेचर का पेपर पता नहीं करेक्ट करने में इतना हुआ था ना मेरे बहुत अच्छे 41 मेरे सारे मेरे सारे ऐसे हैं 44 42 और 41 वो तो मेरे प्रोग्राम में चलने से पहले कितने मार्क्स के पैकेज मिले 225 225 तुम्हारे कितने ओवरऑल मेरे अभी तो एक में है 46 नहीं ओवरऑल मैंने भी नहीं की इतने से करने क्या एक सप्लीओ तो बंदा काउंट करके नहीं लेकिन काउंट नहीं वो रिजल्ट पे लिखा हुआ था नहीं टोटल नीचे कब लिखा होगा कार्ड पे नहीं लिखा हुआ है मैंने तो खुद देखा ही हाँ मैंने सबके देखे थे रिजल्ट अच्छा उस दिन मेरे साथ वही हुई साबिर फिर भी फोन करके पूछा पहले बाजी सब मुझे खोल के उससे छोड़े को लगी होती है पहले मैंने अपना बता दिया मेरे को बाजी के लिए चीज तो आ गया रिजल्ट आ गया मुझे कहा उससे अच्छा तो रिजल्ट खोलने के बाद देने की क्या रिएक्शन था मेरे साथ क्या हुआ पता है क्या मैं तो घर पे भेजने था नहीं यहाँ पे अकेडमी में आ गया मेरे को ऐसे ही तो मुझे लगा था मैं अकेडमी में करती मेरा रिजल्ट आ गया मैंने कहा तुमने साफ कर इसलिए मुझे ऐसा बनाओ कुछ भी तो साथ मेरे को पता है कि मजा आता है तो कहती है आ गया बेटा ब्लैक पे देखो उसको तो लाइट देख दिया था मेरा ब्लैक है तो मैंने फिर सच मैसेज कर दी मेरे सर रिजल्ट आ गया तो सर ने काफ़ी सर्च किया बना लिखने सर ने तो मुझे तो मिल जा क्या है तो सर को तो वैसे ही कि था नहीं मैंने तो सर ने कैसे वैसे बता दिया मैंने फिर मैंने हिना को कहा हिना फ़ौरन देख उसके बाद मैंने कहा कि सर रिजल्ट आ गया तो चेक करो उसने 10 मिनट बाद मैसेज कर दिया अपना रिजल्ट बता दिया मैंने कहा रिजल्ट आ गया फिर कहती है तुम अपना नंबर दे दो मैंने कहा लाइट भी बैठी थी मेरा सीट तो आ गया फिर सर ने भी खोल लिया सर जी ने जब मेरे से नंबर मांगा था मैंने कहा मैं यार चला अपना रोने लगा मुझे इतना डर लगी अभी हिना को दूसरा बता फिर मैंने हिना को भी भेजा मैंने सर को दे दिया पहली दफा तो मेरे सर को पता चला मेरा सर पता है क्या रिएक्शन था बताया ना रिजल्ट हमारे घर ये हो गया है वैसे सारे हम इतना मजाक आ रहे ये हाथ नहीं थी बेगा यार पता है इसके बता के मैंने मेरे भी मैसेज किया था मैंने कहा सबसे पहले तो ये आपको बता लगे इनको सबसे पहले पता चल गया तो ये रहेगी मैंने कहा इसको बताऊंगी नहीं तो हम यानी डिनर कर रहे थे सारे बैठ के इतना मजाक कर रहे थे इतनी हंसी आ रही थी इसने जब बताया ना यानी कि एकदम से मैंने कहा क्या रिएक्शन तो सारे पास ही थे ठीक है मैंने जब इतने ऐसे बताने में उठ के बाहर आ गई मेरी फिर भी कभी हंसी आई कभी मुझे मेरे को क्या था एक्सप्रेशन वो सारे देख रहे थे तो बड़ा यार ऐसी है हाँ मैं
सुनना था, सब वो करे। तो पहले भी सबके लिए जब भी मानसिक सबके लिए मानसिक अलग अलग हाँ ये कि अब तो हमने जब पेपर देना तो समझो हमारे साथ सिर्फ लाखी है, तुमने पढ़ा है तो हमने वो भी कुछ है जो भी हम अगर हमने उसी चीज़ों को एडवाइस किया पढ़ा है तो वो ये बस एक लाखी है कि हमने जाना ताकि अल्लाह ताला कुछ मैं सोच रही थी कि जब उनको हमारी पहले वाला पेपर पसंद नहीं आया तो पढ़ा तो हमने फिर हमारी है तो देखा जाए तो बाकी थोड़ा भी हमने वही पढ़ा था, फिर हम उसमें ड्रामे में क्यों पास हो गए थे यार बात की बात उसमें सब मैं भी ऐसी डिफरेंट सप्लियां लो यार वैसे इतना सर का क्या सही थी मुझे नहीं लगता ये जो हम दिखते हैं ना वो हमें अपनी तरफ से तो हम सेटिस्फाई अनसेटिस्फाई करके आते हैं, लेकिन वो चैप्टर को ही पता चलता है। मुझे लगता है उसने जस्टिस के साथ ही मैं अब बाकी फिर वो एमी शैमी थोड़ी सप्लियां देंगे और एमी शैमी थोड़ी वो पास कर देंगे। अब कोई अन्ना था जो मुझे पास ये भी बात है। अब वो मैं ये भी कहूँ कि हाँ जी उसने खुश होकर मुझे 60 नंबर या उसने खुश होकर मुझे 40 नंबर में पास किया, ऐसे नहीं होता सर ऐसे बस ये है मेहनत है कि जो क्वेश्चन हमने लिखना है ना उस क्वेश्चन के मुताबिक ही आंसर हमारे शायद आइडियाज हमारे थोड़े मिक्स हो जाते हैं क्वेश्चन के मुताबिक हम टाइम की बागी पड़ी होती है। एक दफा एक तो इनका हर दफा पेपर 15 मिनट लेट देना शुरू करती हैं। लड़कियों की मुझे बड़ा पैसा आता है, लड़कियां हाल भी कितनी लेट आती है पता नहीं आपके पास तो जितने चैनल चैनल की चलती है लड़कियों के पेपर नहीं तो कुछ लड़कियां तो मैंने ऐसी में देखी थी जिन्होंने मुंह भी नहीं रहा था पेपर देने में, कुछ लड़ाई ऐसी थी जिनको लगता बदन में फुर्सत नहीं मिली उन्होंने पेपर देना क्या नहीं बंदा टाइम पे हॉल में तो पहुंचे, वो इतना खुद लेट आती थी फिर वो देना शुरू करती थी। मेरे पास पहुंचे 15 मिनट रोज हाँ रोजाना मेरा ड्रामे वाली मुझे 15-20 मिनट लेट हो जाते। मुझे इतना गुस्सा आया फिर मैंने क्योंकि मेरी दरमियानी उधर से देना शुरू करती थी या मुझे शीट मिल जाती थी या क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता क्वेश्चन पेपर मिल जाता वो क्वेश्चन पेपर पहले मिल जाए ना उसका बेनिफिट होता है मतलब क्वेश्चन वो शीट पहले मिल कैसे पहले पेपर दे सारी शीट दे दे बंदा क्वेश्चन समझ जाए नहीं तो सही पता क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ो फिर उसके बाद माइंड में थोड़ा थोड़ा उधर ले जाओ फिर सेट होने लगता है हाँ पहले ये में ये होता है कि हमारी जो स्टार्टिंग है ना वो ठीक मेरा एंड ठीक तो सोते 10 मिनट गुजर जाते और 45 मैंने तो बड़ी कोशिश की 45 मिनट जो है लगा दो फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। मैंने 5 मिनट भी लेते जाओ ना तो लास्ट क्वेश्चन में आना वो ड्रामे का पेपर है आगे क्वेश्चन है हाँ मैंने एक पेपर में 10 मिनट ऊपर ले लिया एक क्वेश्चन अगर 5 मिनट ऊपर ले लो ना तो बड़ा तो मेरे तो पहले 15 मिनट ऊपर लड़की की कहती हाँ बस 2 ही क्वेश्चन होने दो रहेंगे नहीं वो तो गया तुम तो बच्चे तो भी क्या बता रही थी कि कुछ लड़के ने तो दोनों पेजेस के लिखे थे वो 45 मिनट में 10 पेज पता नहीं वो कैसे वो पूरा क्वेश्चन छोड़ देती है इतने बड़े कोई नहीं है पता नहीं वो कैसी मुश्किल से 60 पेज लिख गया 8 पेजेस मुश्किल टाइम खत्म हो जाता है लिखने तो बंदा फिर लिख ले टाइम का मेरे प्रोज का पेपर जो है ना एक क्वेश्चन 8 पेजेस का किया और मैंने अमेरिकन लिटरेचर का 9-10 पेजेस का किया था हाँ हमने कहा था ना वो मुझे यकीन है कि मैंने जो सुनी हुआ क्वेश्चन सिलेक्ट किया है ना वो नील का नहीं लिखा वो हुई है क्योंकि वो एक सा क्वेश्चन था वो था एज अ स्टडी इल्यूजन इस तरह से था है ना और मुझे लगता है आप लोगों ने भी ये हाँ